A very warm greetings to all the Nalandians. Today we are going to discuss exercise 12.2 from our maths book, and we are starting from page number 70. Question number 1. Draw 4 chocolate balls in each ball to find out the number of balls Avni needs to serve 16 chocolate balls. So in this question, children, you have to draw 4 chocolate balls in each ball. हर एक बॉल में आप 4 चॉकलेट की बॉल्स बनाएंगे एंड आपको फाइंड आउट करना है बच्चों कि अवनी को कितने बॉल्स चाहिए 16 chocolate balls के लिए. So let's draw the chocolate balls here. Children, here we have drawn 4 chocolate balls in one ball. Okay, so in first ball there are 4 balls. Second ball में 4 balls और ऐड हो जाएंगी चॉकलेट की. So 4 plus 4 8 balls हो गई हैं. थर्ड बॉल में 4 और चॉकलेट बॉल्स हैं चिल्ड्रन. तो यहाँ पर 4 plus 4 8, 8 plus 4 12 हो गई यहाँ पर. देन इन फोर्थ बॉल 4 और बॉल्स रखी हैं चॉकलेट की. देन 4 plus 4 8, 8 plus 4 is 12. देन 12 plus 4 is 16. यानी कि अगर अवनी को 16 बॉल्स सर्व करनी है तो उसके लिए 4 बॉल्स उसको चाहिएंगे क्योंकि 4 plus 4 plus 4 plus 4 is 16. So Avni needs 4 balls to serve 16 chocolate balls. So we have written here 4. Now B part. The division sentence is. Now children, we have to write the division sentence in these boxes. So let's write it. Here we have written the division sentence, or we can divide it with long method also. Here 16 chocolate balls are divided by 4, यानी कि उनको 4 के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा. Then we know कि 4 के टेबल में 16 फोर्थ प्लेस पर आता है चिल्ड्रन. So 4 times 4 is 16. So we will write here 4. Then writing 16 and subtracting we will get 0. It means कि 16 chocolate balls को सर्व करने के लिए अगर एक बॉल में 4 बॉल्स हैं तो हमें वहां पर 4 बॉल्स की नीड होगी. Now let's read question number 2. Find the number of packets needed to pack the marbles. तो चिल्ड्रन हमें यहाँ पर पैकेट्स फाइंड आउट करने हैं कि हमें कितने पैकेट्स चाहिएंगे नीचे दिए गए मार्बल्स को पैक करने के लिए. ए पार्ट 15 मार्बल्स विद 5 मार्बल्स इन ईच पैकेट. अगर हमारे पास टोटल मार्बल्स 15 है और हमें एक पैकेट में 5 मार्बल्स को रखना है तो हमें कितने पैकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. दिस इज योर क्वेश्चन. So here you can count the number of marbles. They are 15 in number. आपको 15 marbles दिए गए हैं और इन 15 marbles को आपको 5-5 के ग्रुप में रखना है, डिवाइड करना है. So children, if you will count the number of marbles, then they are 15 in number. यानी कि ये 15 marbles आपको given है और हमें उनको 5 के ग्रुप में डिवाइड करना है. So dividing 15 into groups of 5, यानी कि हम इन 15 को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. चिल्ड्रन हम इनको काउंट करके भी डिवाइड कर सकते हैं. As I have divided them here into group of 5. मैंने काउंट करके इनको 5-5 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है. But now let's solve it through division. Dividing 15 into groups of 5 gives dash groups. यानी कि अगर हम इनको 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे चिल्ड्रन. सो यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप. सो 3 ग्रुप्स वी विल गेट अस आंसर. नाउ हियर वी हैव टू राइट द डिवीजन सेंटेंस. सो वी विल राइट हियर 15 divided by 5 is equal to 3. Children, here you have to divide 15 by 5. यानी कि 5 की टेबल में 15 कहाँ पर आता है? Obviously 3 पर आता है. 5 3s is 15. So we will write here 3. So we have written here 3 and we can also find the answer by doing long division. So 15 divided by 5 will give us 3. So dash packets are needed. So we need 3 packets. So we will write the answer as 3. B part.
21 marbles with 3 marbles in each. यहाँ पर आपको टोटल मार्बल्स 21 दिए गए हैं एंड आपको एक पैकेट में 3 मार्बल्स को रखना है. So dividing 21 into groups of 3 gives dash group. तो अगर हम 21 मार्बल्स को 3 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो हमें कितने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे. Now see, if you will count these marbles then these are 21 in number. और अगर 3 के ग्रुप में हम डिवाइड करें तो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप एंड सेवेंथ ग्रुप. तो बच्चों अगर हमें 21 मार्बल्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है जिससे कि 3 मार्बल्स एक ग्रुप में होंगे तो टोटल हम 7 ग्रुप्स बनाएंगे. नाउ डिवाइडिंग 21 इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 गिव्स 7 ग्रुप्स. हमने अभी काउंट किए हैं कि 7 ग्रुप्स होंगे. सो लेट्स राइट द आंसर. नाउ डैश डिवाइड डैश इज इक्वल टू. नाउ हियर यू हैव टू राइट द डिवीजन सेंटेंस. सो 21 डिवाइडेड बाय 3 will give us 7. Here you know that in table of 3, 21 comes at 7. As 3 sevens is 21. So we will write here 7, or you can find the answer even with the help of long division method. So 3 sevens is 21. Now dash packets are needed. So children, we know that 7 packets are needed to pack 21 marbles with 3 marbles in each packet. 20 children form groups of 4 for a game. Children यहाँ पर 20 children हैं और उन्होंने 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाया है. तो अगर टोटल 20 children है तो उन्होंने 4 के कितने ग्रुप्स बनाए होंगे. How many groups do they form? तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि अगर टोटल 20 children हैं और एक ग्रुप में 4 children हैं तो कितने ग्रुप्स बने होंगे 20 children के. So it is very simple. You can divide both the numbers and find the answer. So children, here I have written the division sentence and also the long division. So you can find that where does 20 come in 4's table. 4 की टेबल में 20 कहाँ पर आता है. So if you know the table of 4 then 4 5s is 20. It means here we will write 5. And here also children we know that 20 जो है 4 की टेबल में 5 पर आता है. So let's write here 5. It means there are 5 groups of 4 children. So let's write the answer here as 5. Moving to question number 4. 18 tennis balls are placed in boxes in such a way that there are 3 balls in each box. तो चिल्ड्रन टोटल टेनिस बॉल्स जो है वो 18 है और उनको बॉक्सेस में रखा गया है इस तरीके से कि एक बॉक्स के अंदर 3 बॉल्स हैं. देन यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी बॉक्सेस आर यूज्ड टू कीप द टेनिस बॉल्स. आपको पता करना है बच्चों कि इन 18 बॉल्स को रखने के लिए कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है अगर हम एक बॉक्स में 3 बॉल्स रख रहे हैं तो. So this we can do by division. Let's write the division sentence. So children, I have written the division sentence here and you will have to solve this question by yourself and write the answer here. Starting with question number 5 children. There are 36 students in Avni's class. Avni की क्लास में total students जो है वो 36 हैं. Her teacher makes groups of 6 students. तो टीचर ने 6 बच्चों के ग्रुप्स बनाए हैं. How many groups does she make? तो आपसे पूछा गया है बच्चों कि टीचर ने टोटल ग्रुप्स कितने बनाए हैं. Now total number of students is 36 and we have divided them into group of 6. So let's write the division sentence. So here we have written the division sentence. Now we have to divide 36 by 6. So children, if you know the table of 6 then we know that 6 is 36. So let's write here 6. It means children कि टीचर ने अगर 36 स्टूडेंट्स को 6 के ग्रुप में डिवाइड किया है तो टोटल ग्रुप्स जो बने हैं वो हैं 6. So we have written here the first answer that the teacher makes 6 groups of 6 students. He gives 12 marbles to each group and asks the groups to share the marbles equally. तो बच्चों आप मान लो कि ये ग्रुप्स हैं 6 ग्रुप्स हैं ये और इनमें एक ग्रुप में 6 बच्चे हैं
तो आप मान लो कि ये एक ग्रुप है, इसमें 6 बच्चे हैं। और अब क्या किया है, टीचर ने एक ग्रुप में 12 मार्बल्स दिए हैं। तो अगर एक ग्रुप को 12 मार्बल्स मिलेंगे एंड देन टीचर ने बोला है कि सभी बच्चों को इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स मिलने चाहिए एक ग्रुप में। तो एक ग्रुप में 6 बच्चे हैं चिल्ड्रन, और एक ग्रुप में मैम ने दे दिए 12 मार्बल्स। तो एक ग्रुप में अगर 12 मार्बल्स मिल रहे हैं और उनको इक्वली डिवाइड करना है, तो हम इसके लिए भी डिवीजन सेंटेंस लिख लेते हैं। इट मीन्स चिल्ड्रन कि 12 मार्बल्स हैं, 12 मार्बल्स हैं और वो डिवाइड होंगे 6 बच्चों में, क्योंकि एक ग्रुप में 6 चिल्ड्रन हैं। तो 12 मार्बल्स को अगर हम 6 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करें तो उसके लिए हमने ये डिवीजन सेंटेंस लिखा है। नाउ वी हैव टू डिवाइड 12 विथ 6। तो हम देख लेते हैं कि 6 की टेबल में 12 कहाँ पर आता है। 6 2 इज 12, सो आंसर इज 2, यानी कि इस ग्रुप में एक बच्चे को 2 मार्बल्स मिलेंगे। ईच स्टूडेंट गेट्स 2 marbles, so the answer is 2. Moving to the last question of this exercise, children. Draw a total of 12 flowers on the flower pots. अब आपको इन तीनों flowers pot पर आपने 12 flowers बनाने हैं। Make sure each flower pot has an equal number of flowers. लेकिन आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चों, कि जब आप इन पे 12 flowers बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों फ्लावर पॉट्स पर इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं। तो उसके लिए हम डिवीजन सेंटेंस लिख लेते हैं। सो हियर चिल्ड्रन 12 इज टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स। नाउ 3 इज 3 फ्लावर पॉट्स, यानी कि जो 12 फ्लावर्स हैं उनको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो वी हैव डिवाइडेड 12 बाय 3। नाउ वी नो दैट 3 4 इज 12। 3 एक फ्लावर पॉट पर 4 फ्लावर्स होंगे। सो लेट्स ड्रॉ देम। Now here we have drawn 4 flowers on each plant. Each flower pot is having 4 flowers on them. So with this we complete our exercise 12.2. Thank you children. Have a great day.